Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is dictatorship and democracy. Then we will talk about unitary form of state and federal form of state. Later on, we will talk about the uh, parliamentary form of government and presidential form of government. So, in today's class, you are going to learn almost six different terminologies, six different topics, and these are really important because you must understand about the dictatorship, totalitarianism, and you must understand about the presidential form of government and federal form of government, and you must understand the concepts of unitary state and federal state. Since you are living in a democratic state, you must understand the structure of Pakistani government, like it is a parliamentary form of government, it is a federal form of government, and it is also a democracy. So once you understand these terms, you will be able to understand Pakistan in a better way, the politics of Pakistan in a better way, the lapses, the pitfalls, the shortcomings that are prevailing in our democratic system, are in our government. So you will be able to understand and ascertain all these concepts, and once you are writing on the political issues of Pakistan, you will be uh, able to write an academic answer in the paper. Or even if you are not writing in paper, or if you are writing an article for newspaper, you will be able to write it academically, and your ideas will be accepted because you will be using the terminologies of political science, like federal state, like democratic state, like parliamentary form of government. You will be using bicameralism. You will be using the terms like Senate, like a National Assembly, multi-party system. So these are some of the terminologies that you might assimilate, and once you have the command over all these subjects, so you can use these words, these terminologies in Pakistan affairs, in current affairs, or any other issue on politics related to government, the success of government and the failure of government. So if I'm clearly audible, kindly write. Okay, I'm going to speak a bit louder. I was waiting for it, that if I also felt that I'm speaking a bit slow, so I thought that I should speak a bit louder. So if I'm speaking a bit louder, so then kindly comment the, and is there any issue with only Asadullah or any other one of the students having the same issue? If there is, so then I'll speak much louder then. If there is not, so then that is much enough. Okay, one thing you must do at the beginning of the class, that share this lecture in our WhatsApp group, SAFE 6. So those who have not received the notification should receive it now, and they should join the class without any further delay. Okay, Farhan Dazeeb, thank you. So our today's topic is like dictatorship, like democracy, and these are some of the things that you must learn and understand in details, so that you are able to distinguish between real democracy, full democracy, and semi-democracy, hybrid regime, and pseudo democracy.
and you must understand the positive aspects of dictatorship and the negative aspects of dictatorship. You must understand and you must know, rather I will use the word know, that you must know that from where this democracy people got, because there was no democracy at the beginning of the states or government system. Interestingly, I'll tell you that Socrates and Aristotle and even Plato, these were the three great philosophers, and they never recommended democracy. Though they recommended welfare of the people, they talked about justice, they talked about happiness of the people. Like Plato emphasized justice, right? And equality, so on and so forth. But they never recommended democracy, particularly the democracy in the modern time. So democracy is an evolutionary process, one thing, and dictatorship at that time was something common. Monarchy, we call that monarchy. There used to be a monarch who would be ruling the state, and that time they used to call it city states. So, and he would be having all the powers. He was the law, he was the constitution, and he was everything. Even Plato said that the philosopher king is above the law. प्लाटो भी कहा करता था कि उसने आइडियल स्टेट, जब मैं आपको प्लाटो पढ़ाऊंगा वहां पर आपको मजीद मालूमात भी मिल जाएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट उसने बनाया. उसने कहा कि हम मेरे स्टेट को चलाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो किंग होगा, और जो किंग होगा वो फिलासफर किंग होगा, फिलासफर होगा. चूंकि फिलासफर बहुत ज्यादा काबिल लोग होते हैं, रैशनल होते हैं, और बहुत ज्यादा जो है उसमें क्वालिटी होती है टू जज द राइट एंड रॉन्ग, कि वो सही और गलत में फर्क भी कर सके, फैसला कर सके. अ फिलासफर इज द पर्सन हु कैन डू द राइट जस्टिस. सही जस्टिस जो है एक फिलासफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो. तो उसने फिर कहा कि मैं फिलासफर को किंग बनाऊंगा, और वो फिलासफर जो है फिर अबव द लॉ होगा. कानून जो है व्हाट ही सेज विल बी द लॉ, कि जो कुछ वो कहेगा वो कानून होगा, वो जो है लॉ बन जाएगा. तो बात यह है कि प्लेटो जैसा अजीम शख्सियत, अरिस्टोटल जैसा अजीम शख्सियत, सोक्रेटिस जैसा अजीम शख्सियत जो है, कभी भी दे नेवर रिकमेंडेड डेमोक्रेसी. और वो कहते थे डेमोक्रेसी इज मोबाक्रेसी, कि एक लोग, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ अ मॉब. एक मॉब होता है वायलेंट, खतरनाक, जो नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचाता. तो मोबाक्रेसी तो ऐसी हुकूमत होती है. तो डेमोक्रेसी फिर कैसे इतनी जबरदस्त हुकूमत बनी, जो आज 19th सेंचुरी के बाद पूरी दुनिया में आप लोग देख सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बाकी चीजें मैं आप लोगों को जब पॉलिटिकल फिलोसोफर्स पढ़ाऊंगा, नहीं, टॉपिक आइडियल स्टेट नहीं है. टॉपिक जो हमारा आज का है वो है डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी स्टेट, फेडरल स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये चीज जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये आप लोगों को तो मैंने आज अनाउंस भी किया था कि हमारा जो
क्लास 5 o'clock होगा और हमारे क्लास में जो टॉपिक है वो क्या होंगे। तो मैं दोबारा यहाँ पर सिर्फ क्लास 6 लिख लेता हूँ और दोबारा लिखता मेरे नहीं हूँ कि ये टॉपिक है ऑन द कैप्शन। एनी हाउ, आप लोग क्लास में आने से पहले मेरे पोस्ट देख लिया करें, उसको नोट कर लिया करें और इवन आप कमेंट भी किया करें। मुसीबत ये है कि आप लोग सीन कर देते हैं, कभी कभार 1-2 बंदे लाइक भी कर देते हैं, बाकी ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ना मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं। एटलीस्ट इंसान इतना लिख देता है दैट यस सर आई हैव नोटेड डाउन द टॉपिक्स, ठीक है, या आई एम ऑल रेडी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, कि आज मैं नया कुछ सीखने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट्स में लिखा करें। अपनी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाने के लिए भी इडियम्स इस्तेमाल करें, नई वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस किया करें। और इसी तरह आप लोग टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में भी रहेंगे, कम्युनिकेशन में भी रहेंगे। ये जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, ये सिर्फ मैं इसको क्लास में देखता हूँ, आज जो बैठे हुए हैं या जो है टेस्ट के दिन आ जाते हैं, बाकी पता ही नहीं चलता इनको, मेरा पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। चलो इतना तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर्सनल लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑन वर्चुअल एजुकेशन लाइक ऑन इंटरनेट। लेकिन फिर भी कि क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप लोग कितने पानी में हो, आपको भी अंदाज़ा हो कि आप जो है क्या कर रहे हैं, whether you are going on the right track or on the wrong track। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही है या गलत है। आप लोग कोशिश करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ाएं, टीचर के साथ इंटरेक्शन में रहें हर वक्त। कोई भी टीचर हो, मैं हूँ, ज़ारा है, सरनईम है, ठीक है, रब्बानी हारून है, या कोई और टीचर जो है हमारा, फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड। आप लोग जाएं, उससे क्वेश्चंस करें, पूछें उनसे, उसका एक्सपीरियंस ले लें। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप लोगों को फिर ये सब कुछ जो है इसकी जो ज़रूरत है वो है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फरहान दजेब कहते हैं सर व्हाट प्लेटो सेड अबाउट डेमोक्रेसी प्लीज। ये प्लेटो फिर मैं पढ़ाऊँगा, खैर है। ये वैसे भी इस किताब को ख़त्म करने के लिए 2-3 ही लेक्चर बाकी है। इस वीक में हम इसको भी ख़त्म करेंगे। फिर मैं आप लोगों को प्लेटो, अरिस्टोटल और जितने भी फिलासफर्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं हमारे पास, बेंथम है, स्टैलिन है, ठीक है, और कंट्रैक्चुअलिस्ट हैं, जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स है, रूसो है, फिर उन सब को जो है मैं आप लोगों को इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। बुक में बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। बुक में आप लोगों को ये यहाँ तक दिया गया है कि डिफिनीशन भी दी गई है, आपको ये भी बताता है कि कौन सा फॉर्म फिर बेस्ट है, कौन सा फॉर्म बेस्ट नहीं है, क्यों बेस्ट है, क्यों नहीं है। तो बुक में ये सब कुछ बड़े डिटेल से लिखा हुआ है। मैं क्या करने जा रहा हूं आज आप लोगों को, मैं आज आप लोगों को सिर्फ वो समरी, वो टीचर लाइक लेक्चर दूंगा कि आप लोग समझ लें। क्लास के बाद जब आप लोग ये बुक खोलेंगे, उसको रीड करोगे, सो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बिल्कुल आसान होगा आप लोगों के लिए, कोई मुश्किल नहीं होगी। व्हेन यू आर रीडिंग द बुक आफ्टर द लेक्चर, आप लोगों को मैं कंसेप्ट क्लैरिटी देता हूं कि डिक्टेटरशिप है क्या चीज। असल में डिक्टेटरशिप जो है, इट इज the rule of one man who exercises his power, his authority over each and everything. His words are absolute.
उसके अल्फाज ही एब्सोल्यूट हैं, ही हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसको क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करता है, वो जो कहता है बस वही कानून भी होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। अ डिक्टेटर डज नॉट नीड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मुशर्रफ ने भी कहा था कि ये आईन क्या है, कागज का एक टुकड़ा है। तो अ डिक्टेटर डज नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद अपने आप को कहता है, जैसे फ्रांस का जो सदर था, या किंग कहूंगा, उस वक्त किंग कहा जाता था, लुइस, वो कहता था आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, कि मैं ही स्टेट हूं। इसी तरह हमारे पास डिक्टेटर हिटलर गुजरा है, मोसोलिनी गुजरा है, कमाल अतातुर्क गुजरा है। ये सब ये कहते थे दैट स्टेट इज एवरीथिंग फॉर देम, ह्यूमन बीइंग्स या इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये अहम नहीं है। फॉर अ डिक्टेटर, डिक्टेटर के लिए क्या अहम है, द स्टेट, कि स्टेट ही सब कुछ है। अगर किसी को मारना है मार दे, किसी की आजादी छीननी है छीन ले। अच्छा, हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर, आई मीन व्हाट आर द मेरिट्स, कैन एनीवन आर्मी चीफ ऑफ बिकम डिक्टेटर, ये बता रहे आ रहा हूं, ठीक है। पहले जब डिक्टेटर बनता था, या हम उसको मुनार्क कहते हैं, किंग कहते थे, वो तो लोग उसको जो है इकट्ठे हो जाते अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक और अकॉर्डिंग टू रूसो, सही। वो तो ये कहते थे कि लोगों ने जो है, क्योंकि कियास था, लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, कोई कानून नहीं था, कोई स्टेट नहीं था, लोग कियास में थे, किसी की लिबर्टी, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, लाइफ सेफ नहीं थी, प्रोटेक्टेड नहीं थी। तो वो मिले, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहा कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरा ख्याल रखेंगे। तो जब लोगों ने ये बात की कि आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखूंगा, तो तीसरे बंदे की जरूरत महसूस हुई कि अब इस मुआहिदे को सही तौर पर चलाने के लिए एक पावर होना चाहिए जो दोनों को इस मुआहिदे पर पाबंद रखे, रिस्ट्रिक्ट रखे, ताकि न मैं जो है इस मुआहिदे के खिलाफ जाऊं, न वो जाए। तो वो तीसरी ताकत, उसको फिर सावरन कहा गया, और वो किंग बना, और इसी तरह जो है वो डिक्टेटरशिप कायम हुई। डिक्टेटरशिप के लिए एक रिलीजियस व्यू भी है कि बस खुदा की तरफ से, डिवाइन खुदा की तरफ से एक शख्स को कहा गया कि आप पैगंबर हैं, और फिर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका नस्ल डिक्टेट करता आया। एनी हाउ, इस पर क्रिटिसिज्म भी मौजूद है, ये पुरानी बातें हैं, ये बिल्कुल। ये जो आपका सवाल है वो है मॉडर्न डिक्टेटरशिप। मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है असल में ये कहां से आता है? मॉडर्न डिक्टेटरशिप आता है, हम उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। ये अपने साथ लिखे शाबाश जल्दी से। डिक्टेटरशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। जब हालात खराब हो जाएं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ले लें, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, जब वहां की पॉलिटिशियंस फेल हो जाएं, मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाए, या बाहर से खतरात हो, तो ऐसे क्राइसिस के दौरान जो है फौजी, आर्मी जनरल जो होता है, वो ये सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है कि अब मैं जो है इसको ठीक करूंगा, बिकॉज एवरी वन एल्स हैज फेल्ड, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। तो ये जो मॉडर्न, हम इसको कहते हैं मॉडर्न डिक्टेटरशिप। तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जैसे पाकिस्तान में मुशर्रफ का दौर आप लोगों को याद होगा, जिया का दौर याद होगा, अयूब खान का दौर याद होगा, जब पॉलिटिशियंस फेल हुए 1956 के आईन के बाद 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा, क्राइसिस थे। फिर जो है
1969 में जो है अयूब चला गया, याहिया को बिठा दिया, अगेन मार्शल लॉ लगाया, फिर जिया जो है 77 में, ठीक, फिर जो है मुशर्रफ साहब आता है। तो जब जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो अब ये आते किस तरह है, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के जरिए, ताकत इस्तेमाल करके। हाउ दे कंट्रोल द पीपल एंड गवर्नमेंट, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के जरिए फिर वो लोग अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, अपनी रिट कायम कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मार्शल लॉ, फौजी हुकूमत जो होती है, फरहान दाजेब, डिक्टेटरशिप। जब फौज आपकी हुकूमत संभाले, एक जनरल संभाले, फिर ये मार्शल लॉ बन जाता है। अच्छा, तो अब आता है कि डिक्टेटरशिप जो है इसके फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। एक तो ये है कि जब इकोनॉमी बैठ जाती है, क्राइसिस आते हैं, बिल्कुल हालात खराब हो जाते हैं, जैसे इटली में हुए, ये पहली जंग अजीम के बाद यूरोपियन जितने भी मुल्क थे तमाम के तमाम जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। महंगाई थी, कियास था, बदमनी थी, लड़ाई झगड़े, कुछ भी जो है ठीक नहीं था। तो जर्मनी में हिटलर आया और उसने लोगों को उम्मीद दी कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, और फिर जो है डिक्टेटरशिप कायम कर दी। हम उसको नाजिज्म कहते हैं, नाजी पार्टी बनाई थी उसने। मुसोलिनी आया, उसने फाशिस्ट पार्टी बनाई और फाशिज्म जो है वहाँ पर कायम किया। ठीक, शुरू के दिनों में तो लोगों को ये लगता है कि हाँ बस अब ये सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास होता है कि उसकी लिबर्टी ख़त्म हुई है, फ्रीडम ख़त्म हुई है। डिक्टेटरशिप में तमाम की तमाम प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितना भी है उसको कंट्रोल किया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता, आप किसी को वोट नहीं दे सकते, पार्टियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये क्या है, हनीन खान ने कूप, ये डेटा कूप है ये कूप लफ्ज पहले लिखा करो। अच्छा, को डेटा, ये स्पेलिंग तो सही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन फिर इसका अलग होता है। ये भी है, ये भी बाय फोर्स डिक्टेटरशिप है। अच्छा, ख्वाजा वलीद का कहना है कि हु कैन वी से दैट डिक्टेटरशिप इज मोर सुटेबल इन पाकिस्तान देन डेमोक्रेसी। या इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डिक्टेटरशिप इज नेवर सुटेबल। ठीक है, एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई नेवर सजेस्ट डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। इवन जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है जिसमें थोड़ा सा डिक्टेटरशिप होता है या टोटलिटेरियनिज्म होता है और थोड़ा सा जो है डेमोक्रेसी होती है, मिक्स फॉर्म होता है, मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये फिर आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए कौन सा बेस्ट है। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा लाइन बताता हूँ, ये लेके अपने साथ लेके। आज का सेशन बड़ा इंटरेक्टिव है, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं साथ में जवाब भी दे रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सेंटेंस है, द रेमेडी ऑफ द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट लेस डेमोक्रेसी बट मोर डेमोक्रेसी। ये सेंटेंस लिखे, द रेमेडी ऑफ द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट लेस डेमोक्रेसी बट मोर डेमोक्रेसी।
ये ख्वाजा वलीद, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस करें, बट एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको टाइम दूंगा। खैर आज का क्लास 1 घंटे से ऊपर भी चला जाए कोई बात नहीं। तो द रेमेडी, ये सेंटेंस लेके अपने साथ और फिर हम इस पर बात करेंगे। द रेमेडी ऑफ द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट लेस डेमोक्रेसी आर नो डेमोक्रेसी बट मोर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में मसाइल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म करे, बल्कि डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा करे, बढ़ाए, इन सिंपल वर्ड्स। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस दौर का मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो कि फ्रीडम को भी पसंद करता है, जो कि लिबर्टी को भी पसंद करता है, जो कि इंसानी हुकूक को भी पसंद करता है, फंडामेंटल राइट्स को भी चाहता है, आज़ादी को भी चाहता है, इनलाइटनमेंट को भी चाहता है, लीडरशिप को भी चाहता है, प्रोग्रेस को भी चाहता है, इसी तरह लिबरलिज्म को भी चाहता है, प्रोग्रेसिविज्म को भी चाहता है, डेवलपमेंट को भी चाहता है, तो वो कभी भी जो है डिक्टेटरशिप पसंद नहीं करेगा, डिक्टेटरशिप सजेस्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत में। इवन यहां तक कहा जाता है, ये एनालिस्ट कहते हैं, द वीक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज 1000 टाइम बेटर देन स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो वीक डेमोक्रेसी भी जो है ये डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक शख्स की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। डिक्टेटरशिप जो है वो डिक्टेटर जो होता है वो फोर्स यूज करता है। डिक्टेटर जो होता है ही कैप्चर्स द पावर फॉर अनलिमिटेड टाइम टिल ही डाइज। कोई खास दौरानिया भी इसका नहीं होता, जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि 5 साल हुकूमत जो है करें तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। अगर लोग पसंद करते हैं तो वोट देंगे, पसंद नहीं करते तो उसको हटा दिया जाता है, नई हुकूमत आ जाती है। डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता, बस एक शख्स बैठ गया, बस फिर बैठ गया, फिर कोई उसको नहीं हटा सकता। वो फोर्स इस्तेमाल करते, ही कैप्चर्स एंड सिक्योर्स हिज वैकेंसी थ्रू फोर्स। तो फोर्स फिर हाँ उससे ऊपर बड़ी ताकत आ जाए फिर वो फोर्स के जरिए उसको हटाया जा सकता है। और इसलिए डिक्टेटरशिप के बारे में कहा जाता है, अ डिक्टेटर्स कम्स थ्रू अ स्वॉर्ड एंड कैन बी एक्सपेल्ड थ्रू अ स्वॉर्ड। वो जो है तलवार मतलब फोर्स के जरिए आता भी है, और अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो वो भी जो है पावर के जरिए ही होगा। और यही वजह है कि आप लोग देखते हैं कि ज़्यादा वो डिक्टेटर्स जो कभी नहीं जाते उसको फिर कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है। तब जाकर आप मिसाल ले ले, ये हिटलर की मिसाल ले ले, वो तो खुद जाने वाला नहीं था। इसी तरह जो है कोई और मिसाल, इवन ये मिसाल अच्छा नहीं होगा लेकिन जिया का अगर नहीं मरता तो वो और भी हुकूमत करता। ठीक है, तो ये सब कुछ फिर होता है। अच्छा, ये तो डिक्टेटरशिप कहां से आता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। वो तो क्राइसिस का प्रोडक्ट है। हालात खराब हो जाते हैं, लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो बस फिर डिक्टेटरशिप के लिए जो है वो रास्ता खुल जाता है। अच्छा, फायदा क्या है, चलो एक फायदा दो भी बता देता हूं। इसका फायदा ये है कि जो फैसले किए जाते हैं वो बड़े तेजी से किए जाते हैं, पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो ये नहीं कि बस उस पर सालों साल जो है पार्लियामेंट में सेशंस होते रहे और कानून साजी के लिए नेशनल असेंबली जाना पड़ता है और फिर सेनेट जाना पड़ता है और उसके बाद जो है वोटिंग होती है और 2/3 मेजॉरिटी और
1/10 मेजॉरिटी और 4/3 मेजॉरिटी और पता नहीं क्या क्या मेजॉरिटियां हैं। ये इसमें नहीं होता। बस डिक्टेटर होता है, what he says becomes the law, what he says becomes the foreign policy। तो ये फायदा तो है इसमें कि पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटरशिप आया, आप लोगों को मजे की बात बताऊं, इसकी इकॉनमी बढ़ गई, तेज हो गई। अगरचे फिर जंग की वजह से खराब भी हुई। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर शुरू हुआ तो ये तो अयूब के दौर में हुआ, सही। ये डैम्स वगैरह बने, ये भी उसके दौर में हुए, तो उसमें भी इकानमी बढ़ गई, तेज हो गई। जिया के दौर में भी जो है थोड़ी बहुत वो तेज हुई थी, वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका कोल्ड वार में रशिया के खिलाफ और पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के साथ अलाइनमेंट की थी, डॉलर्स मिले थे पाकिस्तान को। मुशर्रफ के दौर में अगर देखें तो बिल्कुल डॉलरों की बारिश थी पाकिस्तान पर, बिल्कुल पैसा ही पैसा था। हाँ, ये बात है कि पैसे को सही इस्तेमाल नहीं किया गया। पैसा आया, मुशर्रफ कहता था कि पैसे हैं, बताएं क्या काम करूं, बिजली सबके घरों में पहुंचा दो, लेकिन डैम नहीं बनाया। गैस सबके घरों में पहुंचा दो, लेकिन गैस को एक्सप्लोर नहीं किया गया। और लोगों को जो है नए नए शहर बसाने में लगा दिया। अब पाकिस्तान जो है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है उसकी वजह से, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे थे, ये लोग जो है इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे थे, कंपनीज नहीं बना रहे थे, लोगों को इनकरेज ही नहीं कर रहे थे कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जनाब, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, काम करें। स्कीम्स, टैक्स की स्कीम लगा दो जी, ये क्या है, हाउसिंग स्कीम लगा दो। वही जमीन है जो 100 साल पहले थी, लेकिन उसका रेट देखें लाखों में बढ़ चुका है, करोड़ों तक जा पहुंचा है। ये मुल्क की गलत पॉलिसीज होती हैं। जिस घर में आप रहते हैं वही घर है ना, उसमें कोई नई प्रोडक्शन हुई है, ना कोई और नई जमीन, ना कुछ और, लेकिन दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इंसान हैरान हो जाते हैं कि कैसी बात है, अब मेरे पास ये पेन है और इसकी कीमत हर साल बढ़ती रहे, तो हैरान हो जाते हैं कि इसमें क्या फंक्शंस चेंज हुए हैं, कोई नई चीज आई है जो इसकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तानी जमीन जो है उसकी कीमत बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये लोग जमीन को बेचते हैं, फिर दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है, और इसको बिजनेस समझता है, प्रॉपर्टी बिजनेस। हालांकि इकोनॉमिक्स के रूप से देखा जाए तो दिस इज नथिंग, ये तो बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस तो सही तौर पर वो है जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें किसी को जॉब मिले, उसको सैलरी मिले, जिससे प्रोडक्शन आए, उसको आप एक्सपोर्ट करें, बाहर मुल्क भेजें, आप दुनिया के साथ कंपीट करें। जमीन बेचकर आपने कौन सा बड़ा कारनामा किया है? अब ये इमरान खान आया, उसने भी ऐलान किया कि हाउसिंग स्कीम और 50 लाख घर और 5 करोड़ घर और पता नहीं क्या क्या। एनी हाउ, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इकानमी। जब कभी लेक्चर दूंगा इकानमी पर, वहां पर आपको वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब जब पैसे डिक्टेटरशिप आता है तो मुल्क की इकानमी तेज हो जाती है, उसकी पॉलिसीज जो है वो जल्दी जो है इन्फोर्स होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं, वो डिले नहीं होती। ये तो 2-3 फायदे हुए, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि इंसान की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, उसका जो है फ्रीडम ख़त्म हो जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ख़त्म हो जाता है, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब इंसान तब खुश रहता है व्हेन ही फील्स एट लिबर्टी, जब वो खुद को आज़ादी पर महसूस करता है, ही इज़ हैप्पी, अदरवाइज ही इज़ नॉट। आप उसको जन्नत में भी बिठा दे, लेकिन पाबंदियां रखे कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, उसको डर में रखे, उसको फोर्स में रखे, वो जन्नत में भी खफा होगा। इसी तरह डिक्टेटरशिप में भी होता है। अब आप देख लें HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अमेरिका का भी देख लें, और HDI आप चाइना का भी देख लें,
तो वहां पर अमेरिका में फुल डेमोक्रेसी है, कनाडा में फुल डेमोक्रेसी है, ठीक है, यूके का देख ले वहां पर फुल डेमोक्रेसी है, वहां की एचडीआई देख ले, और फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ उसके एचडीआई या जहां पर डिक्टेटरशिप होता है वहां पर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देके तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि हाँ अमेरिका की जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट वो बहुत ज्यादा, बिकॉज दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बिजनेस की आजादी होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी असल में कहते ही है द रूल ऑफ द पीपल, द रूल ऑफ द पीपल, कि जिसमें लोगों को जो है आजादी भी हासिल हो, अपना नुमाइंदा खुद चुनते हैं, किसी पार्टी से नाराज हो जाएं तो 5 साल बाद उसको चेंज भी कर देते हैं, तो ये भी एक चॉइस है। वोट का हक इनके पास होता है, फिर लोगों को इज्जत दी जाती है। इन डेमोक्रेसी इंडिविजुअल इज द एंड, इन डिक्टेटरशिप स्टेट इज द एंड। डिक्टेटरशिप में स्टेट सब कुछ होता है, इंडिविजुअल इज नथिंग, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होता डिक्टेटरशिप में। लेकिन डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल इज द एंड एंड स्टेट इज द मीन्स। स्टेट एक जरिया है इंडिविजुअल को खुश करने के लिए, उसकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेमोक्रेसी में फिर यह होता है कि आप खुश रहते हैं, आपके मजे होते हैं। लेकिन रियल डेमोक्रेसी इन 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 फुल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में तो है ही कुछ नहीं, हम तो खुश नहीं है। ये खैर पाकिस्तान जो है अमेरिका की तरह फुल डेमोक्रेसी नहीं है, यूके की तरह फुल डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया को ले ले तो वहां पर भी जो है वो फुल डेमोक्रेसी नहीं है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी का होना, फुल डेमोक्रेसी का होना, इट इज समथिंग आइडियल फॉर नाउ। ये अभी के लिए एक आइडियल है। अच्छा, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में अब्राहम लिंकन जिस तरह कहता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, के इट इज द रूल ऑफ द पीपल, कि ये लोग जो है लोग सॉवरन होते हैं, लोग ही डिसाइड करते हैं, और जो हुकूमत बनाई जाती है दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो कैबिनेट होता है जैसे वजीर आजम और उसके मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और फिर जो पार्लियामेंटेरियंस है वो फिर कौम जिसने उसको पार्लियामेंट भेजा है वो उसको अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। और ये फिर लोगों की फलाह के लिए वेलफेयर स्टेट होता है, उसके लिए काम करते हैं डेमोक्रेसी में, रियल डेमोक्रेसी में। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है 3 किस्म की होती है। एक फुल डेमोक्रेसी है जैसे अमेरिका और यूके में, दूसरी सेमी डेमोक्रेसी होती है जिसको आप हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। ये थोड़ी सी मिक्स, ख्वाजा वलीद कहते हैं व्हाट अबाउट करप्शन, ये बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो सेमी डेमोक्रेसी मतलब फुल डेमोक्रेसी नहीं होती, आधी डेमोक्रेसी, आधी जो है कुछ मिक्स होता है, उसमें फोर्स भी शामिल होता है, ठीक है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इवन पाकिस्तान पर इस वक्त 2018 के बाद ये इल्जाम लगाया जाता है दैट इट इज अ हाइब्रिड रिजीम या हाइब्रिड डेमोक्रेसी, ठीक है, कि यहां पर जो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। और ये क्या है, क्लिंटन, अमेरिका की जो क्लिंटन है उसने तो पाकिस्तान को डीप स्टेट कहा, अगरचे आप ये डीप स्टेट उसको ना कहें पेपर में, लेकिन उसने डीप स्टेट कहा। डीप स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर तमाम के तमाम फैसले फौजी हजरात करते हैं, आर्मी करते हैं, जनरल्स करते हैं, और जो हुकूमत होती है वो पपिट हुकूमत होती है। हुकूमत आती भी फौज की वजह से है, उसको चलाया भी फौज के फैसलों के साथ होता है, उसके अपने फैसले नहीं होते। तो डीप स्टेट उसने कहा, और फिर क्लिंटन ने यह कहा मिसाल डीप स्टेट की पाकिस्तान है, बड़ी
खतरनाक बात है, लेकिन सच्चाई भी है इसमें। लेकिन ये खैर है, आप लोग पेपर में नहीं लिख सकते कि पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट ये वगैरह, क्योंकि अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। यू हैव टू बी पैट्रियाटिक, आप मुहिब वतन होंगे पेपर में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं डेमोक्रेसी की तरफ। तो डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी, अच्छा एक है सूडो डेमोक्रेसी, तीसरा फॉर्म है सूडो डेमोक्रेसी। सूडो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल मतलब नकली, फेक डेमोक्रेसी, बिल्कुल जो बराए नाम डेमोक्रेसी होती है, बाकी होती नहीं है। जैसे मिसाल दूंगा, आप लोगों की किताब में भी यही मिसाल लिखी है कि अयूबी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के जनरल अयूब के दौर में, जो इसने 1962 के बाद डेमोक्रेसी कायम की थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कायम किया था, खुद सदर बने थे, वो जो है सूडो डेमोक्रेसी थी। मुशर्रफ के दौर की ले लें, ठीक है, वो सदारती निज़ाम लाए थे, लेकिन हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। वो क्या है फिर? सूडो डेमोक्रेसी है। बराए नाम खुद को कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, स्टेट, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अच्छा, वो तो डेमोक्रेसी में फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी बता दो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है कि लोग इकट्ठे हो जाएं किसी शहर के इलाके में और वहां पर वोटिंग करें, डायरेक्ट वोट करें कि फलां शख्स को जो है हम वजीर आजम साहब चुनते हैं। अब ये डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन ये बहुत पुराने ज़माने में, ये ग्रीक के दौर में होता था, जो छोटे छोटे शहर होते थे और 5,000 और 10,000 उनकी सारी जो है आबादी होती थी, वहां पर तो पॉसिबल है। लेकिन इस वक्त डायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़े बड़े ममालिक है, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें क्या है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, अपने इलाके के एमपीए एमएनए को, फिर वो लोग जाते हैं पार्लियामेंट जाते हैं, फिर वहां पर एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आता है और फिर वो लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने अवाम को, और हम इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि जहां पर आपके वोट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम वोट देते हैं अपने नुमाइंदों को, फिर ये नुमाइंदे पार्लियामेंट में हमको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो डेमोक्रेसी, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को किस तरह देखा जाए, कि ये फुल डेमोक्रेसी है, सीमी है, या बिल्कुल सूडो डेमोक्रेसी है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस है बुक में भी दिए गए हैं, मैं आपको जनरली 2-3 बता देता हूं। एक ये क्वेश्चन करे कि क्या आज़ादी है आपको, तो अगर आज़ादी है तो यस कह ले, तो मतलब डेमोक्रेसी है। रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है, अगर है तो यस कह ले, बिल्कुल है, सबके लिए है। ये ख्वाजा वलीद ने फिर क्वेश्चन है, यू मीन टू से दैट एस्टेब्लिशमेंट इज मोर पावरफुल देन ब्यूरोक्रेसी एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। एस्टेब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कह ले तो यस, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मोस्टली जो है एस्टेब्लिशमेंट भी दो किस्म का है। एक तो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये भी एस्टेब्लिशमेंट है, और आपकी आर्मी जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो अगर आपका मतलब आर्मी से है तो वो पावरफुल है, लेकिन असल में जो डेमोक्रेसी है, इन डेमोक्रेसी जो पावर है या सॉवरेनिटी है लाइज विद द पार्लियामेंट, वो असल में पार्लियामेंट के पास होता है। तो चलो ये क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि क्या आपका पार्लियामेंट सॉवरेन है, आपका वजीर आजम सॉवरेन है, उसके पास तमाम के तमाम इख्तियारात हैं फैसले करने के, तो अगर हैं तो डेमोक्रेसी है, नहीं है तो वो किसके इशारों पर चलता है, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। जुडिशरी को देखें, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, अगर कानून सबके लिए बराबर है, इक्वालिटी है, आपको एजुकेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है,
आपका मीडिया जो है पाबंद नहीं है, तो फिर इन सब क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको यस में मिलता है तो फिर मतलब ये है कि आपके मुल्क में फुल डेमोक्रेसी है। अगर नो में मिलता है तो सूडो डेमोक्रेसी है। अगर कुछ यस है और कुछ नो है तो फिर ये हमारे पास आता है कि ये सेमी डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रिजीम है। तो असदुल्ला उनर, अच्छा आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, आपको अपना ओपिनियन है। एनी हाउ, पाकिस्तान को हम डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर एक जबरदस्त बात कहता है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और वो ये कहते हैं कि इसके कंडीशंस होते हैं। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के कंडीशंस है। डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होती है जब आपके सिटीजन्स को आजादी हासिल हो। डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होती है जब आपके सिटीजन इनलाइटेंड हो, इंटेलेक्चुअल हो, क्रिटिकल थिंकर्स हो, फैसला कर सकते हो, डिसीजन मेकर्स हो, डिसाइसिव हो। डेमोक्रेसी तब कामयाब हो सकती है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तब हो सकती है व्हेन द मासेस आर एजुकेटेड, कि लोग जो है एजुकेटेड है, तब डेमोक्रेसी। अब आप देख लें, इन्हीं चीजों को पाकिस्तान पर अप्लाई कर ले तो फिर यहां पर एक नुकसान आता है डेमोक्रेसी का, जो अरिस्टोटल कहा करता था कि डेमोक्रेसी इज इन रियल मोबाक्रेसी, कि ये तो मॉब की हुकूमत है, एक मॉब है और बस वो अपनी हुकूमत कायम करें। एनी हाउ, अरिस्टोटल क्यों कहता है, वजह क्या है, वो आपको बाद में बताऊंगा जब अरिस्टोटल पढ़ाऊंगा। लेकिन असल में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोट्स आर काउंटेड नॉट वेव। एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का वोट एक आम आदमी के वोट के बराबर कैसे हो सकता है, ये एक क्रिटिसिज्म है डेमोक्रेसी पर। द वोट्स आर काउंटेड नॉट वेव, तमाम के तमाम वोट जो है वो जो है काउंट होते हैं। डेमोक्रेसी पर एक और एतराज भी है कि कोई भी शख्स इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। अब आप देख ले, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बहुत कम एजुकेटेड हैं, बहुत कम क्वालिफाइड हैं। बाकी सारे के सारे जो है इंटरमीडिएट किसने किया है, किसने बीए किया है, सिंपल बीए वगैरह। किसी को पता ही नहीं होता कि उर्दू बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश की तो बात ही अलग है। इसी को भी निकाल दो, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज भी उन लोगों के पास नहीं है, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स तक नहीं दे सकते। महंगाई क्यों है, तो बारिश आता है तो पानी आता है, और ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अजीब अजीब लॉजिक देते हैं, इंसान हैरान हो जाता है। महंगाई, अगर आप कह दे कि महंगाई है तो आपको कहते हैं कि बस रोटी मत खाओ, डबल रोटी खाओ, चिकन मत खाओ, दाल महंगा हो जाए तो दाल मत खाओ, चिकन खाओ। ये हमारे पॉलिटिशियंस हमें कहते रहते हैं। कोई प्रोग्राम ही नहीं होता, वो जीडीपी को समझते ही नहीं है, पॉलिटिक्स को समझते ही नहीं है। इसी तरह जो है बैठ जाते हैं। डॉलर के बारे में अगर उससे पूछा जाए तो वो कहते हैं ये जितना महंगा होगा तो उसमें तो पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर बैंक में डॉलर है तो वो भी तो महंगे हो रहे हैं। अच्छा, शाह से व्हाई देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन इन पाकिस्तान बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो पाकिस्तान का जो मैंने अभी कहा आपको कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन ये साथ में एक सिक्योरिटी स्टेट भी है। मैं आपको पॉजिटिवली बता रहा हूँ। अगरचे मुझे सीमी डेमोक्रेसी का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, मुझे हाइब्रिड डेमोक्रेसी का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आई एम एजुकेटिंग यू फॉर द पेपर। तो अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कह दें कि पाकिस्तान इज आल्सो अ सिक्योरिटी स्टेट। ये सिक्योरिटी स्टेट भी है, ऊपर से हमारी आर्मी जो है वो अगर ज़्यादा पावरफुल है तो हम इंडिया को जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान जो है
चूंकि एक साइड पर ईरान है, दूसरे साइड पर अफगानिस्तान है, तीसरे साइड पर इंडिया है। चलो चाइना को छोड़ दिया, उसके साथ तो फ्रेंडशिप है, लेकिन इन तीनों के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना। तो हमारे इख्तिलाफात ईरान के साथ भी हैं, हमारे इख्तिलाफात अफगानिस्तान के साथ भी है, हमारे इख्तिलाफात ख़ास तौर पर इंडिया के साथ हैं। तो ऐसे में आर्मी पावरफुल होगी तो वो आपके मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकती है, सिक्योर रख सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपको, हालांकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फुल डेमोक्रेसी, जवाब तो ये है, लेकिन अगर पेपर में कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप जो है पॉजिटिवली लिखे कि पाकिस्तान मजबूरन जो है अब इसने आर्मी को पावरफुल रखना है, उसका बजट भी बढ़ाना है, और वो जो कहे हुकूमत को मानना भी है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। ऊपर से जो फैसले होते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो वो सिर्फ आज़ादी और इकानमी को नहीं देखते, बल्कि कुछ फैसले स्ट्रेटिजिक भी होते हैं। तो स्ट्रेटिजिक जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, या जो स्ट्रेटिजिक मसाइल हैं हमारे, उसके लिए जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है थोड़ा सा कम रखा गया या मीडिया को कंट्रोल किया गया। लेकिन ये बातें मैं आपको सिर्फ पेपर के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप इंटेलेक्चुअली देख लें, अगर आप इनलाइटनमेंट चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बात हो रही थी डेमोक्रेसी के नुकसान की। तो कोई भी शख्स लीडर बन सकता है, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, लेकिन फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि इंसानों को आज़ादी मिल जाती है, वेलफेयर स्टेट मिल जाता है, आपको वोट का हक भी हासिल हो जाता है। इवन इस दौर में अगर देख लें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसमें एक अहम किरदार अदा करती है, अपना बिजनेस चलाना जो है प्राइवेट बिजनेस, तो ये सब कुछ जो है आपको एक ज़बरदस्त डेमोक्रेसी में मिल सकती है। एग्जाम्पल ज़बरदस्त डेमोक्रेसी की अमेरिका है, यूएसए साथ में जो है। इसी तरह डिक्टेटरशिप जो है दैट प्रोमोट्स वार्स, और डेमोक्रेसी कोशिश यही करती है कि वार्स को जो है जितना डिले करें या जितना ख़त्म करें तो बेहतर है। और आपको दूसरी जंग अजीम का बता दूं, जो वर्ल्ड वार सेकेंड है, वो जो हुआ दैट वाज द प्रोडक्ट, और दैट वाज बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप। ये जर्मनी और मोसोलिनी और ये हिटलर वगैरह, ठीक है, ये जो है, और साथ में ये बाकी यूरोपियन ममालिक, वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप्स कायम हुई थी, तो इसने जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था इन डिक्लेयरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फिर जो है उसके बाद डेमोक्रेसी, वो उनकी डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हुई दुनिया से। फिर दो पावर्स आए, एक कम्युनिस्ट और एक अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट। और फिर उसके बाद जो है शिकस्त भी कम्युनिज्म को हुई, और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है उसको जो है दुनिया में पजीराई भी मिली, और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक बने। इवन जितने भी यूरोपियन ममालिक, फ्रांस को ले ले, जर्मनी को ले ले, इटली वगैरह को ले ले, जो अब डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। अच्छा, ये तो चंद बातें हो गई। अब आते हैं एक दो चीज़ें और भी पढ़ लेते हैं, आखिर में क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 घंटा भी पूरा हो गया, लेकिन खैर आज थोड़ा सा क्लास लेंथी कर लेते हैं आप लोगों की इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि नाउ टुडे यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस, एंड मुझे मज़ा भी आता है आप लोगों को जवाब देकर, क्योंकि किताब तो वैसे भी आप लोगों ने पढ़ना है, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट। यूनिटरी स्टेट में क्या होता है, उसमें एक सेंटर होता है और उसी के पास सारे के सारे इख्तियारात होते हैं। उसमें स्टेट्स, यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स, प्रोविंसेस, सूबे जैसे हुकूमतें ये नहीं होती। लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, एंड दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में बस एक पार्लियामेंट है, और उसी के अंदर तमाम मुल्क के लिए जो है पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, और उसी के अंदर जो है सारे फैसले होते हैं। अगरचे वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद है,
लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो भी पार्लियामेंट की या कैबिनेट मेंबर्स की निगरानी में काम करते हैं और उसी के डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स और हिदायत और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है काम करते हैं। फायदा यूनिटरी सिस्टम का क्या है? यूनिटरी का फायदा यह कि जो सेंट्रल हुकूमत होती है, सेंट्रल, वो ज़्यादा पावरफुल भी होती है, उसके पास फोर्स भी होता है, लेस एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा इलेक्शंस नहीं करने पड़ते। जैसे पाकिस्तान में देखें तो विफाक के लिए आपने अलग इलेक्शंस करने होते हैं और सूबों के लिए आपने अलग इलेक्शंस करने होते हैं, वहाँ पर अपना एक पार्लियामेंट होता है। इन लोगों का सूबाई जो है, सूबाई असम्बलियों का अपना जो है प्रोविंशियल असम्बली ये वगैरह चीज़ें होती हैं, उसके अपने अखराजात हैं, वहाँ पर इस्लामाबाद के अपने अखराजात हैं, तो ये एक्सपेंसिव है। यूनिटरी में ऐसा नहीं होता, तो वो लेस एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, और नुकसान फिर क्या है? नुकसान ये है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं दैट यूनिटरी सिस्टम आर स्टेट इज गुड फॉर द स्मॉल कंट्रीज। जो छोटे ममालिक होते हैं उसके लिए फिर यूनिटरी सिस्टम बेहतर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यूनिटरी सिस्टम जो है फेल हो जाता है जब स्टेट बहुत बड़ा हो, उसमें डाइवर्सिटी हो। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान चूंकि एक फेडरल स्टेट है, तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म में पावर जो है वो सेंटर के पास भी होता है और पावर जो है फिर सूबे के पास भी होता है, तो जो सॉवरेनिटी है मुल्क की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, ये बात भी कह दूं साथ में कि जो पावर है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, सूबाई हुकूमतें भी होती हैं और विफाकी हुकूमतें भी होती हैं। अमेरिका भी एक फेडरल स्टेट है, वहां पर भी स्टेट का अपना एक कानून होता है और सेंटर का अपना एक कानून है। पाकिस्तान भी एक फेडरल स्टेट है, यहां पर आपको इस्लामाबाद की हुकूमत भी मिलती है और आपको अपनी सूबाई हुकूमत भी मिलती है। फायदा क्या है? फायदा यह है दैट इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पाकिस्तान इज अ मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री। इसमें कई रिलीजन्स हैं, कई जुबानें हैं, इवन सूबे जो हैं अलग अलग हैं, पंजाब, सिंध, और ये उनके अपने अपने रिवायात और सब कुछ अपना है। तो ऐसे में आप एक हुकूमत नहीं बना सकते। तो इसमें क्या होता है कि फेडरल सिस्टम सेंटर भी बना लेता है जो बड़े मसाइल हल करता है। बड़े मसाइल जैसे सिक्योरिटी का मसला है पूरे मुल्क को, तो वो सेंटर के पास उसकी ताकत होती है, डिफेंस सेंटर के हाथ में होता है। आपके फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी सेंटर के हाथ में होता है। तो ये जो बड़े चीजें हैं जिससे मुल्क, पूरे स्टेट को फायदा हो, वो सेंटर को वो पावर्स मिल जाती हैं। और छोटे मोटे पावर्स जिससे आम लोगों को फायदा हो, तरक्की हो उसकी, तो वो फिर सूबों को मिल जाती हैं। जैसे कि सूबाई हुकूमतें होती हैं और फिर वो जो है एजुकेशन संभालते हैं। एजुकेशन जो है उनका मसला हो जाता है, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सड़कें बनाना वगैरह, ये सब कुछ। अब फायदा इसका क्या है? फायदा ये है कि हर शख्स जो है जिस सूबे से वो ताल्लुक रखता है वो खुद को आजाद समझता है अपनी पॉलिसीज में। यूनिटरी स्टेट में वो आजादी खत्म हो जाती है। बस जो सेंटर कहता है वो हम उसको कहते हैं डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म ये लफ्ज लिखे अपने साथ, फिर सर्च भी करें थोड़ा सा कि डिस्पोटिज्म। तो यूनिटरी स्टेट इज मोर डिस्पोटिक, वो डिस्पोटिक होता है, मतलब जो सेंटर कहता है बस वही हो जाता है, कोई उससे इख्तिलाफ नहीं रख सकता। यहां पर थोड़ी सी बात अलग है। फेडरलिज्म में आपको आपके जो छोटे मोटे मसाइल हैं अपने तरीके से डील करने का हक मिल जाता है। सेंटर को भी एम्पावर किया जाता है और सूबों को भी एम्पावर किया जाता है। तो जो बड़े स्टेट्स होते हैं उसके लिए जो बेहतर फॉर्म ऑफ
क्या है, स्टेट है, तो वो फिर फेडरल है। और पाकिस्तान आप लोगों को पता है दैट इज अ फेडरल स्टेट। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज पढ़ लेते हैं हम, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी चीजें खास तौर पर ये यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट, ये आप लोग पेपर के लिए भी तैयार करें, बिकॉज पास्ट में ये सब कुछ आया भी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमारे पास जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, और जो पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के पास होता है, और इसको कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो जो पॉलिसीज बनाती हैं, कैबिनेट में कौन होता है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग वोट देते हैं एमएनएस को, फिर वो पार्लियामेंट जाते हैं, फिर ये लोग अपने लिए जो है एक वजीर आजम को नॉमिनेट करते हैं, जिस तरह इमरान खान को किया गया। फिर इमरान खान अपने लिए एक कैबिनेट बनाता है मिनिस्टर्स का, जो उसको मिनिस्टीरियल स्टाफ भी कहा जाता है, और फिर उसको मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, किसी को डिफेंस का, किसी को इंफॉर्मेशन का, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो फिर जो है हर एक शख्स एक आसान तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट को चलाने की जो है कोशिश करता है। अच्छा, तो ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट उसमें सुप्रीम होता है, पावरफुल होता है, और जो कानून और लॉज बनाए जाते हैं वो भी पार्लियामेंट से होता है। इसमें सेपरेशन की जो थ्योरी है वो भी नहीं होती पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसमें जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है वो मिक्स होते हैं। जैसे कानून जब बनाया जाता है तो उसमें कैबिनेट वाले और जो नेशनल असेंबली के उसी पार्टी के मेंबर्स जो है लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साजी करते हैं, एक दूसरे से मिल बैठकर करते हैं, अलग अलग नहीं होते। अब आते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे अमेरिका का सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो पॉलिसीज बनाते हैं मुल्क के लिए वो भी प्रेसिडेंट करता है। इसी तरह जो कानून साजी होता है वो फिर कांग्रेस करती है। प्रेसिडेंट और कांग्रेस, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से आजाद होते हैं। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है। जुडिशरी भी आजाद इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस भी इंडिपेंडेंट है, और इसी तरह एग्जीक्यूटिव सदर भी इंडिपेंडेंट है। तीनों एक दूसरे को जवाब दे भी नहीं है। अगरचे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेपर में पढ़ाऊंगा भी कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम क्या है। अक्सर उस पर भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुकूमत उसको कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। वो रिस्पॉन्सिबल भी है, जवाबदेह भी है, answerable टू द पीपल, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वहां पर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक वजीर आजम को, उसके पूरे काबीना को खत्म भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जब ज्यादा पार्टियां हो, लेकिन वहां पर एक नुकसान भी आता है कि दैट इज अ बिट वीकर। उसमें मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहते हैं। आप लोग पाकिस्तान में देखते हैं 3 मिनिस्टर्स जो है 2-3 सालों में वजीर खजाना का जो पोस्ट है उस पर 3-4 जो है बदले जा चुके हैं। हर वक्त मिनिस्टर्स की तब्दीलियां होती रहती हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देख ले तो पिछले दौर में हर 2 साल बाद वजीर आजम चेंज होता, उसको ख़त्म कर दिया जाता, नए इलेक्शंस किए जाते। इंस्टेबिलिटी थी। फिर 2008 के बाद और फिर 18वीं तरमीम के बाद हमारा जो पार्लियामेंट है एम्पावर हुआ, सदर से इख्तियारात ले लिए गए। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द प्रेसिडेंट इज अ टिटुलर हेड दैट डज नॉट हैव एनी रियल पावर। सदर के पास इख्तियार नहीं होता। और ख़ास तौर पर जब 18वीं तरमीम हुई पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम का बता रहा हूँ, तो उसमें तमाम के तमाम इख्तियारात सदर से ले लिए गए। वो ऐसे ही बराए नाम हेड ऑफ द स्टेट है, उसके पास
कुछ भी इख्तियार नहीं है। तमाम के तमाम इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास और कैबिनेट के पास होते हैं, मिनिस्टर्स के पास होते हैं, वजीरों के पास होते हैं। अच्छा, अमेरिका का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होते हैं, कानून साजी के इख्तियारात जो है कांग्रेस के पास होते हैं, और साथ में जुडिशरी के पास जो है कानून को या आईन को प्रोटेक्ट करने के इख्तियारात उसके पास होते हैं। वो देखता है कि कोई इदारा कानून के खिलाफ तो नहीं जा रहा। प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, उसकी बातें जो है वो भी मानी जाती हैं, उसके पास जो है डिफेंस वगैरह वो भी होता है, मतलब कमांडर इन चीफ वगैरह वो सब उसके अंडर काम करते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी जो है प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी अपनी काबीना में शामिल करे। यहां पर हम उसको मिनिस्टर्स कहते हैं, वहां पर कैबिनेट को प्रेसिडेंशियल फैमिली कहा जाता है, और उनके मिनिस्टर्स का नाम जो है सेक्रेटरी कहा जाता है। सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ लॉ, सेक्रेटरी ऑफ ये और वो, तो उसको जो है सेक्रेटरी का नाम दिया जाता है। यहां पर है तो वजीर, मिनिस्टर्स कहा जाता है। अच्छा, पार्लिमानी निज़ाम में जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मिनिस्टर बनाया जाता है तो कोशिश इनकी ये होती है कि पार्टी का मेंबर जो हो, जिसकी लॉयल्टी हो, वफादारी हो पार्टी के साथ, और जिसकी वफादारी हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उसको लिया जाता है। ख्वाजा वलीद, आप बस 5 मिनट के बाद मैं आपको सारों को जो है क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन करने का हक दूंगा, फिर आप लोग करें जो क्वेश्चन करना है करें, बस 2-3 मिनट के बाद। अच्छा, तो प्रेसिडेंट के पास सारे के सारे इख्तियारात होते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो काबिल गौर बात है वो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी है। वहाँ पर प्रेसिडेंट, कांग्रेस मतलब उनका जो पार्लियामेंट है, और जुडिशरी, ये सब अलग अलग होते हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले। बाकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो आपके बुक में है, आप लोग बुक को जाएं, देखें, थोड़ा सा रीड करें। कोई मसला हो आप लोग क्वेश्चन भी तब कर सकते हैं क्लास के बाद भी, लेकिन मैंने क्वेश्चन के लिए एक खास पोस्ट रखा हुआ है, इसी ग्रुप में है, मैंने उसको अनाउंसमेंट में भी डाला हुआ है, बिल्कुल टॉप पर है। वहां पर मैंने लिखा है कि जो क्वेश्चंस क्लास में आंसर नहीं होते टाइम की वजह से या किसी और वजह से, तो आप जाकर वहां पर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट में फिर जवाब देता हूं। अच्छा ख्वाजा वलीद, अब आप क्वेश्चन करें। अगर किसी और मेंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करें। 4-5 मिनट है आप लोगों के पास, फिर क्लास बहुत लेंथी हो जाता है तो मैं उसको ख़त्म करूँगा। तो वो लोग जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन नाउ। जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या है? ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्या है? 2-3 है क्या? So far our country like Pakistan to serve your nation establishment is better institution than bureaucracy. Why votes are not waived? Why we do not sit merit for elections? देखिए, डेमोक्रेसी जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो तो यही है that everyone is eligible for the vote, और उसके लिए जो वोट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो है 18 साल। आप CNIC रखते हैं, आपकी एज 18 साल है तो आप वोट दे सकते हैं। फिर ये फिलोसॉफिकल बात हो जाती है कि कुछ को जो है वोट का हक हो और कुछ को ना हो, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि
वाई वोट्स आर नॉट वेव्ड, के वोट्स वेव क्यों नहीं हुए, ये आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हुए। तो ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि इन लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं कि वहां पर सिर्फ काउंटिंग होती है। अब लीगलिटी हम दोनों जो है चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं ये वेव होना चाहिए। अब वेव हो तो किन उसूलों पर हो, ये तयन कौन करेगा कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप 2 वोट दे रहे, और एक और बंदा है वो जो है कम लिखा पढ़ा है तो वो कम देगा, एक ने मेडिकल पढ़ा है तो वो 1 वोट देगा, और एक ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है वो हुकूमत को ज्यादा समझता है वो 2 वोट देगा, एक जो है जज है रिटायर्ड जज है तो उसकी ज्यादा एक्सपीरियंस है वो जो है 5 वोट देगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अगेन इट वुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी बिलीव्स इन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर बिलीव करती है, and this is the principle of equality that everyone should be allowed to vote for the person he or she chooses। जो शख्स भी वो चूज करना चाहता है उसको वोट देने का हक दे दो। Why? Because policies will affect you, me and everyone equally। तो जब पॉलिसी बनाई जाती है वहां पर यह नहीं देखा जाता कि इंटेलेक्चुअल जो होते हैं जो ज्यादा काबिल होते हैं वो उसको ज्यादा इफेक्ट किया जाए, और जो अनएजुकेटेड है जिसको आपने वोट का हक ही नहीं दिया है तो फिर तो बात खराब हो जाती है। पॉलिसीज तो फिर दोनों के लिए बनती है, जब दोनों के लिए बनती है तो फिर वोट का हक भी दोनों को दे रहे, तो इक्वली ट्रीट करे, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ये बात आ जाए तो फिर अनडेमोक्रेटिक होगा। तो ये आपका आंसर है व्हाई वोट्स आर नॉट काउंटेड, बिकॉज डेमोक्रेसी बिलीव्स इन इक्वालिटी, एंड वंस यू वेव समथिंग देन इट डज नॉट रिमेन इक्वालिटी, फिर तो आप इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन है, व्हाई वी डू नॉट सेट मेरिट फॉर इलेक्शंस। तो कैसा मेरिट आप चाहते हो, द वोटर्स educational background etc, then why these are ruling us if they are idiots। अच्छा, why they are ruling you if they are idiots। देखिए अब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में तो फ्यूडलिज्म भी है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। अब एक लड़का है उसकी परवरिश जो है जरदारी की फैमिली में हुई, नवाज शरीफ की फैमिली में हुई, जहांगीर तरीन की फैमिली में हुई, तो जाहिर बात है वो चाहे काबिल हो या ना हो, वी रिस्पेक्ट एंड वी वैल्यू दैट पर्सन एंड दे फील देमसेल्फ सुपीरियर, और बाकी जो लोग हैं वो नहीं करते। तो यहां पर तो यही क्वालिटीज है। इवन कॉलेजेस पर पॉलिटिक्स बंद किया हुआ है कि कॉलेजेस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से फिर लीडर्स निकलेंगे। इन लोगों ने हर जगह पर जो है कथन लगा दी है। इवन हमारा जो मुल्क है वहां पर डिक्टेटरशिप रहा है बहुत ज्यादा, 30+ ईयर्स जो है आप पर इन लोगों ने हुकूमतें की है, एंड दे नेवर प्रोमोटेड डेमोक्रेसी, द रियल डेमोक्रेसी। तो ये यही लोग फिर आप पर हुकूमत करते हैं, जो ज्यादा अमीर होंगे या पॉलिटिकल फैमिली से उसका ताल्लुक हो, जिसके आबाव अजदाद से हो, फिर तो यही होगा। तो यही वजह है कि इडियट्स ही हम पर हुकूमत करते हैं या स्टूपिड ही हम पर हुकूमत करते हैं, अगरचे ये टर्मिनोलॉजीज आप पेपर में नहीं लिख सकते। अच्छा, इफ दे आर क्लेवर की बात अलग है जनाब, क्लेवर की बात अलग है। क्लेवर तो ये लोग हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कनिंगनेस। वो तो आपको मिकावेली ने भी कहा है कि जब तक आप में क्लेवरनेस ना हो तो आप बढ़ जाते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं, सो वी कीप इन माइंड ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ द पीपल, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, लिबर्टीज, इक्वालिटी। फिर तो हम ये टर्मिनोलॉजी जहन में रखकर ये बात करते हैं कि हाँ फला हुकूमत में ये होता है, फला के लीडर्स ऐसे हैं वैसे हैं। दुनिया में तो सारे पॉलिटिशियंस जो है क्लेवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं।
what is their utility of cleverness? They are just filling their own bank accounts with dollars. ठीक है, इसी तरह जो है अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है. तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम ये सब पढ़ते हैं तो फिर हम इसको इनइक्वालिटी कहेंगे, हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, हम इसको कहेंगे कि इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट. अच्छा, फिर चौथा क्वेश्चन है, कैन एस्टेब्लिशमेंट नॉट बी पावरफुल विदाउट इंटरवीनिंग? अच्छा, तो पावर जो है, पावर तो तब उसको के पास होगा जब वो इंटरवीन करेगा, जब वो अपने बंदे पार्लियामेंट में बिठाएगा और पार्लियामेंट में जब जो वो पॉलिसी चाहेगा फिर बनाएगा. बिकॉज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन डेमोक्रेटिक स्टेट. पार्लियामेंट्री स्टेट, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तो पार्लियामेंट ही सब कुछ है, तो इनडायरेक्टली फिर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं. डायरेक्टली तो वो नहीं हो सकते, फिर तो उसको पार्लियामेंट खत्म करना होगा और फिर इंटरवीनिंग खत्म हो जाएगी, बस फिर वो जो चाहते हैं करते हैं. अच्छा, इज एन प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर? पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए तो अभी ये डिबेट शुरू हुआ है. इवन इमरान खान ने भी 2018 के शुरू में किया था, लेकिन फिर कामयाब ना हो सका कि सदारती निज़ाम लाया जाए और 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए. लेकिन अगर आप देख ले तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम गुजरा है पाकिस्तान में, ठीक है, 1962 में भी गुजरा है और सदर मुशर्रफ के दौर में भी गुजरा है. एंड दे अटरली फेल्ड, ये फेल हुए हैं, मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं. और जो पार्लियामानी निज़ाम है 2018 के बाद अब तक ये थोड़ा सा स्टेबल जा रहा है. तो मेरे ख्याल में जो है अभी जो सिस्टम है ठीक है, कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन सो फार इट इज़ गोइंग वेल, ये अच्छा जा रहा है. और ये डेमोक्रेसी जो है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ ये खुद ब खुद स्ट्रांग होती जाती हैं अगर आप इसको मज़ीद भी 10-12 साल और देते हैं. प्रेसिडेंशियल, देखो सिस्टम की बेहतरी और सिस्टम की जो है नाकामी, हम ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंशियल बेहतर है या पार्लियामेंट्री बेहतर है. अब अमेरिका प्रेसिडेंशियल है एंड दैट इज बेटर, यूके पार्लियामेंट्री है एंड दैट इज बेटर, दोनों खुश हैं. क्यों? वहां पर जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है, जो गवर्नेंस है, ये सब कुछ फिर आपने देखना होता है. रियल डेमोक्रेसी है, लोगों को आज़ादी हासिल है, उनकी इकानमी बेहतर है, वहां पर इंटरवेंशन नहीं है, सिक्योरिटी जो है उनको खतरात नहीं है दूसरे ममालिक से, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हासिल हो चुकी होती है. तो ये तो इस पर डिपेंड करता है. अब पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ठीक है, अभी तक तो चल रहा है. 2008 के बाद ये कितने ये तकरीबन 13-14 साल हो जाएंगे. ये तीसरी हुकूमत होगी जो अपना वक़्त जो है पूरा करेगी 5 साल. सो इट इज़ गोइंग वेल, इसमें कोई ख़राबी नहीं है. हाँ, जो नुकसानात हैं मैंने आपको पहले भी बताया. द रेमेडी ऑफ द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट लेस डेमोक्रेसी बट मोर डेमोक्रेसी. इसी तरह अगर इस पार्लियामेंट्री निज़ाम में कोई ख़राबी है, कोई खामी है, तो इसको ठीक किया जा सकता है, ना कि इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए. ऐसा नहीं होता. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर सारे के सारे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास होते हैं. यहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट के पास तो फिर सारे के सारे लामहदूद इख्तियारात होते हैं. तो वहाँ पर अगर आपका इंटरनल निज़ाम ठीक ना हो तो प्रेसिडेंट तो फिर जो है मुशर्रफ को देख के कुछ भी करता था, इधर भी ऑपरेशन उधर भी ऑपरेशन, अमेरिका के साथ भी मुआहदे, वहाँ पर भी अफगानिस्तान के जंग में भी आपको धकेल दिया, ठीक है, आइन की खिलाफ वर्जी भी की, उस पर अभी तक जो है मुकदमे चल रहे हैं और ख़ुद जो है उधर बैठा हुआ है. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आई विल नेवर रिकमेंड इट, पर्सनल व्यू यही है कि फॉर पाकिस्तान बस जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है वही ठीक है.
Sir, merit is it. It is written clearly in Constitution 2000. Very good. Fair and free elections. But laws and policies are never implemented fully. बिल्कुल यही बात है कि मेरिट भी है, इसी तरह इसको एक खास फ्रेमवर्क भी दिया है, लेकिन पॉलिसीज जो है वो सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो ये गवर्नेंस का भी मसला आ जाता है, रूल ऑफ लॉ का भी मसला आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो पावर्स वगैरह होते हैं वो भी है, तो ये सारे आ जाते हैं। तो फॉर नाउ इट्स इनफ। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, सी यू इन माय अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उस पोस्ट पर मुझसे कर सकते हैं।